today we will discuss flowcharts. There are 5 symbols to draw a flowchart. First of all, we will know what is flowchart. Flowchart is a sequence of instructions to be executed to perform any task. Okay, so there are 2 boxes with the round corners. This is called start box and end box. Another is and this parallelogram is to input any number and to display any output. And third box is rectangle box. This is also called processing box, to perform any process like A equal to B plus C. This is the processing. So these are 3 boxes. Fourth one is rhombus. This is used whenever we need to take any decision. Like if A greater than B, then we will use this kind of box where we will get 2 outputs, either true or false. So we have discussed 5 type of boxes. 1, 2, 3, 4, and 5th one is connectors. These connectors which I have used. Connectors. Now we will see one example. Okay, suppose I have to draw a flowchart. Draw a flowchart to input 2 numbers from user and display the greatest one. First of all, we'll take start box. We'll write start inside it. Thereafter, we have to input 2 numbers. So we'll take 2 numbers. Input A comma B. After that, I have to compare whether A is greater or B is greater. So I need to take one decision. I'll use this decision box. Is A greater than B? So it will be having 2 outputs. Maybe A greater than B, or it is also possible that B is greater than A. So in both cases, if A is greater than B, then output will be, you will display a message print A is greater, and in case of no, we will display the message that which is greater, B is greater. And after that, in both cases, both will go to which type of box? Stop box or end box, whatever you say. Okay, so this is a simple flowchart to display greater of 2 numbers. Of statements in Python. Now next we will see how many statements are there in Python. First one is empty statement.
So depict, to tell what is empty statement, we use pass. So only there is a word pass which shows that there is empty statements. Pass means just move the control to the next statement. Next is simple statement. Simple statement like print hello. So this is a simple statement. Any statement, any single instruction is called simple statement. And when a program consists of more than one simple statements, then that will become compound statement. So you can say compound statement can consist of more than one single statement. So these are the three type of statements. The most important one is pass. Pass just move the control to the next statement. Now next we will see program control flow. This is important. It is of three types. Sequence is very simple, but we have done till now, that is sequential. Sequential means all statements will execute one after another. So suppose you have a program with 10 statements. First will execute, then second, third, fourth, fifth, and keep on. Next is selection, or it is also called decision statement. Here we make a decision as we have done in the example of flow chart. If else, we'll see an example of this. And third type of statements are iteration, also called looping, where when we need to execute some task repeatedly, we will use iteration. Like we display a table of 2 ones are 2 twos are 4. Here we are multiplying 2 with the number again and again. So this comes under iteration. So sequential is very simple, so I am just leaving it. We'll move to second type of statements, that is selection statements and decision statements. Under this we'll do if else statements, decision making statements. Decision making statements, there are three. If else, if elif, and the last one is nested if. This is only for computer science students. Rest are for IP students as well as for CS students. This is only for CS students. So IP students may leave this nested if else. We will see if statements. First of all, before starting this, I will tell you what is if. If is a keyword. If is a Python keyword. Okay. Whenever we use if condition, and then we will use colon. Example, Python program. We will write a Python program. To display legible water. I am taking one variable x. Enter age of the user. I have converted that into number.
After that I am checking if age of the person is greater than equal to 18. That means that will be a eligible voter. If print eligible to vote. So now see here the functioning of this if else. पहले आपने वेरिएबल में इनपुट करवाया. आफ्टर दैट इफ़ देखो कैसे लिखा, इफ़ एंड देन कंडीशन. क्या कंडीशन है जिसके बेस पे आपने डिसीजन बनाना है. इफ़ देन कंडीशन, एंड इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस body will execute. This is the body part which will come under if. Suppose if the user is not greater than x 18, then control will come into else part. Again colon tells that there is a body after this else. Print not eligible to vote. This is a very simple example of if else. Now we see another example. To find greater out of two numbers, we will input two numbers a b after that we'll check whether a is greater than b. In this case I'll display a message that a is greater, and if a is not greater than b, then control will go to else. In case of else it will display print b is greater. If there are two numbers, there can be either a is greater or b. So this is a simple program to calculate greater of two numbers. Suppose these are unequal numbers. Suppose it may be possible that both are equal, so we need to add one more check to check the equality of this number. So first of all we'll input first number, thereafter we will input second number, so here I am checking if a greater than b, then what should be displayed? A is greater. Else. Now else also have two more options, so we will use L if. L means negation of if means another statement. So L if is else plus if. Else is otherwise condition of earlier if and second condition. L if a b greater than a, print b is greater. अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो इट मीन्स ना ए बी से बड़ा है ना बी ए से बड़ा है, तो क्या होगा? इट मीन्स बोथ आर equal. So this is an example of if else. Okay. One thing I want to tell you that else is not necessary. It depends on your question whether you require else condition or not. Second, elif always comes after if, because third, else
cannot be used without if. Okay. Next we'll take a little advanced example. Write a program to accept percentage of a student and display grade. So percentage, you know, it can be in decimal numbers, so we'll use float instead of int. Enter percentage. If percentage is greater than 85, then you have to display the grade as A. If the percentage is greater than 70 and it is less than 85, then grade will be B. So these type of questions normally come in your theoretical exam, and if you are clear with these questions, then only you will be able to find the answer in MCQs. Print C. If third condition is if the percentage is still greater than 45 and less than equal to 60, then grade is D. Else print, अगर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इट मीन्स उस बच्चे के मार्क्स कितने होंगे? 45 से भी कम. अगर 45 से भी कम है किसी के, तो उसको कितना ग्रेड मिलेगा? E. So this is also a simple example of if else, multiple ellipse. So this type of question come in the exam. So next is nested if else. Nested if else. Nested if else means if within if. Example, so I am just putting one example. There is a variable var. If var is less than 200, print A. Again I am putting another condition. If यहाँ पे यूज़ किया मैंने, उसके अंदर फिर से एक if लिख दिया, उसकी बॉडी के अंदर. यू कैन सी द इंडेंटेशन, देख सकते हो ना. तो मैंने ये प्रिंट थोड़ा सा आगे करके लिखा है. आगे करके क्यों लिखा है? क्योंकि वो इफ़ की बॉडी में है. इफ़ var इक्वल टू 150, देन प्रिंट भी. अभी ये थोड़ा सा और आगे लिखा है क्योंकि ये इस इफ़ के बॉडी के अंदर है. एलिफ var इक्वल टू 50, प्रिंट C. ठीक है. एल्स प्रिंट D. और ये मैंने एक और एल्स लिखा. अब ये एल्स किसका एल्स है? इस इफ का एल्स है. और ये एल्स किसका है? इस इफ का एल्स है. ठीक है. अब ये वाले एल्स का इफ कौन सा है? ये वाला. प्रिंट
ई। अब मुझे आप लोग बताओ कि अगर मैंने यहाँ वैर 100 डाला है तो आउटपुट क्या आएगी। वैर अगर 100 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू होके प्रिंट ए हो जाएगा, ए विल कम ऑन द स्क्रीन। फिर अंदर जाएगा, वैर को कंपेयर करेगा 150 से, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी फॉल्स, और अगर ये फॉल्स होती है तो यहाँ पे जाएगा एलिफ में, एलिफ में ये अगेन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये जाएगा एल्स में, थर्ड में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एल्स में मतलब ऊपर वाली दोनों फॉल्स हैं तो एल्स में जाएगा। यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेगा, डी, ठीक है। तो आउटपुट विल बी ए एंड डी। ऐसे ही नाउ यू अगेन सॉल्व दिस। इफ आई कीप इट 180, नाउ what will be the output? In case of 100, output is A and D. Now we will see in case of 180. This condition is true, it will display A. Again it is false, it is false, again it will come and it will display D. Okay. Suppose it is 280. 180 के केस में देखा ये आउटपुट आ रही है। अब 280 के केस में देखते हैं तो क्या आती है। 280 के केस में where is less than 200, this is false. Again directly it will come to else part. इस if के बाद अगर ये false होगी तो सीधा else में जाएगा. It will display E on the screen. Now these were till now we have discussed if statements. If condition, you will write condition here, then you will put colon here. If the condition is true, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो तुमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन जो लिखी है, ये जो कंडीशन है, अगर ये फॉल्स है तो कंट्रोल ये वाली तीनों स्टेटमेंट्स स्किप कर देगा और सीधा एल्स पे आके फिर इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इफ़ एल्स। और दूसरा मैंने तुम्हें बताया इफ़ कंडीशन कॉलन, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट करेगा। एल इफ़ मतलब अगर ये फॉल्स है तो यहाँ आएगा, यहाँ आकर फिर से एक और कंडीशन तुमने लिखी है उसको चेक करेगा। देखो एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं होती, एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन एलिफ के पास कंडीशन होती है, क्योंकि एलिफ किससे बना है, एल्स एंड इफ़ से बना है। ओके, तो revise the examples given in your in your book. Next, for loop, while loop. Python is case sensitive, so take care of case. Whatever I am writing in small case. For loop. First we will see for loop. For loop, how do we write for? Okay, with example I tell you. Suppose I need to display 10 numbers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in vertical order. So how will I write the program? For x in range. Range is a function which will give you numbers. कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है तुमने, और बीच में कितना गैप होना चाहिए, यानी एक और दो के बीच में कितना गैप है, एक, 2 और 3 के बीच में कितना गैप है, 1। तो वो तुम्हें ये गैप लिखना है। ठीक है, और ये लास्ट नंबर जहाँ तक जाना है +1, और ये क्या था, स्टार्ट। जब तुम ये स्टेटमेंट लिखते हो तो x में सबसे पहले स्टार्ट आता है, यानी 1 आएगा, और तुमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट x, तो वो 1 डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली x में क्या चला जाएगा, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 11 तक, 10 तक जाएगा। 11 लिखा जाता है क्योंकि लास्ट नंबर एक्सक्लूड होता है, और गैप कितना होएगा, 1। तो 1 के बाद 2, फिर 3, ऑटोमेटिकली पहले x में 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा।
हर बार पहले x में 1 जाएगा, प्रिंट होगा 1, फिर एक नंबर बढ़ जाएगा, x में फिर 2 जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 2, फिर 3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 3 जाएगा। इट विल कीप ऑन मूविंग, ये सर्कल में घूमती रहेगी जब तक लास्ट ये x की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 11। जैसे ही वो 11 हो जाएगा वैसे ही वो रुक जाएगा। ठीक है, दिस वाज लूप। हम इसका और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई नीड टू डिस्प्ले फॉर x इन रेंज, 1 से शुरू करके मैंने 20 तक जाना है, बीच में 3 का गैप दिया, प्रिंट x तो क्या आएगा आउटपुट, पहले 1, उसके बाद गैप कितना दिया 3 का, तो यानी 4, फिर क्या आएगा 7, 10, 13, 16, 19। ठीक है, 21 से ऊपर नहीं जा सकता, ये 20 तक आएगा, तो 19 के बाद अगला नेक्स्ट 22 है, पर 22 विल नॉट कम बिकॉज लास्ट नंबर इज 20। ठीक है, 21 लिखा जाता है लेकिन हम 20 बोलते हैं क्योंकि जो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर +1 करके लिखते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द आउटपुट। नेक्स्ट इज we will do another program to calculate factorial of a number। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 को जब तक 1 नहीं आता मल्टीप्लाई करो 24। ऐसी 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 6। ठीक है, तो हम ऐसे कोई नंबर इनपुट करेंगे और वो प्रोग्राम हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी हो तो तुमने बार बार तो एक वेरिएबल ले लिया करो m=1 फॉर x इन। अब हमने नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा 4 से, तो हमने यहाँ रेंज में क्या लिखना है 4, कहाँ तक जाएगा 1 तक, हमने लिख दिया 0 क्योंकि हमें हमेशा +1 या -1 करके लास्ट नंबर लिखना होता है। और हर बार गैप कितना है -1, क्योंकि 4 के बाद आपको 3 चाहिए, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद बस, तो गैप कितना चाहिए -1। m इज़ द नंबर विच विल होल्ड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, जब तुम यहाँ पे ये लूप में क्या होगा, x में क्या आएगा पहले 4, 1:4 मतलब 4 स्टोर होगा m में, फिर अगली बार x में क्या आएगा 3, फिर 2, फिर 1, तो ऐसे ये मल्टीप्लाई होके 24 विल कम इनटू m एंड व्हेन यू विल डिस्प्ले m 24 विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। सेम वे सपोज इसी प्रोग्राम को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, m=1 फॉर x इन, चलो हम वो बाद में करेंगे, दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी विल डू हाउ टू डिस्प्ले, नेक्स्ट प्रोग्राम इज to generate table of a number। num इक्वल टू इनपुट करा लिया तुमने यूज़र से नंबर की, कौन से नंबर का तुम्हें टेबल दिखाना है। फिर तुमने क्या करना, फॉर, अब तुम्हें रेंज में क्या चाहिए 1 से लेकर 11 लिखेंगे हम। ठीक है,
प्रिंट क्या करना है तुमने, टेबल किसका, इसका। नाम को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, तो ये तुम्हारा डिस्प्ले क्या आ जाएगा। सपोज़ मैंने 3 एंटर किया, यहाँ पर 3 का टेबल आ जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है। So this is the table of the number. Next is while. This is for loop, another is while loop. while भी वही काम करती है जो for काम करती है, बस while में एक चीज़ थोड़ा सा सिंटेक्स का फ़र्क है। मैं तुम्हें पहले for loop करा के फिर उसको कंपेयर कराती हूँ while के साथ। मैंने सपोज़ 1 से लेकर 10 नंबर जनरेट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 10। तो फॉर में हम कैसे लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 to 11। अगर मैं गैप ना लिखूं तो बाय डिफ़ॉल्ट गैप कितना आता है, 1। यहाँ पे प्रिंट आई। अब मैं इसी को देखो वाइल में लिखूँगी। वाइल में लिखने के लिए आई में सबसे पहले क्या आया था, 1। इसी को मैं यहाँ लिखूँगी, आई इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद कंडीशन क्या है लूप की, जब तक आई 10 से कम है या 10 के बराबर है, हर बार करना क्या है तुमने, प्रिंट करना है आई को। उसके बाद आई की वैल्यू एक एक यहाँ पर अपने आप बढ़ रही है, यहाँ पर तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। सो दिस इज सेम एज दिस। वाइल को क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए और उसकी बॉडी में स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट होंगी हर बार, बार बार एग्जीक्यूट होंगी। कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी ये तुम्हें ये कंडीशन बताएगी। सो दिस इज, एक हम और एग्जांपल करते हैं। चलो 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो सम के केस में मैंने s = 0 ले लिया। वाइल कब तक सम करना है हमें नंबर्स का, जब तक n नहीं आ जाते। n हमने यूज़र से इनपुट करवा लिया। नंबर यूज़र से इनपुट करवा लिया। सम 0 है, हमने कब तक सम करना है उस नंबर को, जब तक एक n तक नहीं पहुंच जाता। एक x में ले लिया हमने 1, x <= n। ठीक है। और हमने s में ऐड कर दिया हर बार x को हर बार इंक्रीज कर दिया बाय 1। तो प्रिंट क्या करना है हमने, लूप में क्या आना है, प्रिंट s। चलो अब हमने लिख दिया प्रोग्राम, अभी हम इसको देखते हैं कैसे चलेगा। सपोज़ n तुमने यहाँ पर एंटर किया 4 तक। ठीक है। s में क्या है, देखो n में क्या है 4, s में क्या है 0, x में क्या है 1। ठीक है। वाइल x <n, अब x के 1, n के 4, जब तक 1 4 से छोटा है, ट्रू है, अंदर आ गया। अंदर आके उसने s में क्या डाल दिया, s = s + x। x क्या था 1, s क्या था 0, 0 + 1 इज 1 चला जाएगा। ठीक है। और x में x + 1 इज 2 बन जाएगा। फिर ऊपर गया, फिर चेक किया उसने 2 4 से छोटा है, हाँ जी नीचे आ जाओ। s में क्या चला गया, s + x, s इज़ 1, x इज़ 2, तो यहाँ पे क्या बन गया ये 3। और x में क्या आएगा, x + 1 मतलब 3। ठीक है। अब ऊपर फिर जाएगा, अभी भी 3 4 से छोटा है, तो फिर नीचे आएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 + 3 6, और x क्या हो जाएगा 4। फिर ऊपर जाएगा, 4 <= 4 ट्रू, फिर यहाँ आएगा 4 और +6 10, और x क्या हो जाएगा 5। ऊपर आएगा, नाउ 5 इज़ <= 4, दिस इज़ रॉन्ग।
रॉन्ग हो गया तो लूप से बाहर आ जाएगा, बॉडी से मतलब लूप वाइल की जो बॉडी है उससे बाहर आ जाएगा और एस को डिस्प्ले कर देगा। एस क्या है? 10। सो आंसर विल बी 10। तुम्हारे एग्ज़ाम में MCQs जो आएंगे उसमें तुम्हें प्रोग्राम दिया जाएगा और तुमसे आउटपुट पूछी जाएगी, और आउटपुट तुम्हें तभी आएगी जब तुम्हें लूप्स आती होंगी। सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस अ लॉट सो दैट यू कैन डू MCQs सक्सेसफुली। ये ईजीएस्ट एग्जाम्पल है, तो तुम्हें ये याद रखना है कि इतना सा क्वेश्चन तो तुम्हें आना ही चाहिए। ईजीएस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स मतलब लूप विद इन लूप। सपोज मैं लिखा फॉर x इन रेंज 1 to 5। अब तुम्हें पता है कि x में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। अब इसके अंदर भी मैं एक और लूप लिख दूँ, फॉर y इन रेंज 2, 5। ठीक है, मैं लिख दूँ प्रिंट x प्लस वाई। तो क्या होगा? पहले ये स्टेटमेंट में आएगा, x में क्या आएगा? 1, फिर y में क्या आएगा? 2, और यहाँ पे आज क्या आ जाएगा? 1 + 2 3 डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर पहले इनर लूप, इसको बोलते हैं इनर लूप। इनर लूप पूरी चलेगी 3 बार, 2 3 4। उसके बाद आउटर लूप चलेगी। ठीक है, मतलब ये इनर लूप हर आउटर लूप के लिए, आउटर लूप कितनी बार चलेगी? 4 बार, 1 2 3 4। तो ये इनर लूप हर आउटर लूप के लिए 3 बार चलेगी। तो यानी ये लूप कितनी बार चलेगी? 4 × 3 12 बार। ठीक है, सो दिस इज नेस्टेड लूप। अगेन दिस इज फॉर CS students, not for IP. Next topic we'll see jump statements. Jump statements. There are 2 type of jump statements in Python. This is again for computer science students only. IP students के सिलेबस में jump statements नहीं है, nested loop भी नहीं है। 2 जंप स्टेटमेंट्स हैं हमारे सिलेबस में, कंटिन्यू एंड ब्रेक। ब्रेक मीन्स टू कम आउट ऑफ बॉडी ऑफ लूप। कंटिन्यू मीन्स सपोज लूप की बॉडी में 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज़ कंटिन्यू। तो कंटिन्यू अगर एक बार एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी स्किप हो जाएंगी। सो कंटिन्यू मीन्स, तो यानी ये वाली जो स्टेटमेंट्स है, फोर्थ स्टेटमेंट है, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंटिन्यू स्किप्स स्टेटमेंट्स ऑफ लूप आफ्टर इट। एग्जाम्पल, चलो हम एक लूप लेते हैं, x = 10 while x <= 15 print a if x = 13 break, else if x = 12 continue, पहले हम एक प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट b देन कंटिन्यू, और इफ एल्स दोनों ही फॉल्स है तो प्रिंट c। दैट्स इट,
सपोज नाउ इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम तो क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू 10 होगी, फिर ये लूप में जाएगा, लूप में जाके यहाँ पे चेक होगा कि 10 15 से छोटा है, यस इट इज़ स्मॉलर, प्रिंट ए डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। उसके बाद आप चेक करेगा कि x की वैल्यू कितनी 13 है, नहीं इसके x की वैल्यू तो 10 है, तो एल्स इफ में आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि ये 12 है, नहीं अभी भी ये तो 10 है, एल्स इट विल डिस्प्ले सी ऑन द स्क्रीन। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 थी अब हो जाएगी 11, कंट्रोल अगेन इट विल गो हेयर, 11 15 से कम है, अगेन इट विल डिस्प्ले ए ऑन द स्क्रीन, अगेन दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स, अगेन इट विल डिस्प्ले सी ऑन द स्क्रीन। नाउ इट विल बिकम 12, 11 था, x 11 प्लस 1 12, ऊपर गया 12 15 से छोटा है, ए डिस्प्ले कर देगा। नाउ यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि क्या 12 13 के बराबर है, फॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा क्या 12 12 के बराबर है, यस, एंड इट विल डिस्प्ले प्रिंट बी ऑन द स्क्रीन एंड कंटिन्यू। यहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ आएगा अगर मैं यहाँ प्रिंट डी लिख दूँ। देखो अब इस एल्फ की बॉडी में 3 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मैंने जैसे ही उसने कंटिन्यू रीड किया उसने डी वाली स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया। कंटिन्यू मीन्स गो डायरेक्टली टू कंडीशन पार्ट। इस केस में क्या होगा, 12 था वो हमेशा 12 रहेगा, तो और बार बार ये लूप में एंटर करेगा एंड इट विल बिकम इनफाइनाइट लूप, क्योंकि ये वाले स्टेटमेंट पे तो कभी पहुंच ही नहीं पा रहा, वो यहाँ पर तो कभी भी नहीं पहुंच पा रहा। कंटिन्यू क्या करता है, उसको बार बार ऊपर ले जा रहा है, नीचे आने ही नहीं दे रहा। अगर नीचे नहीं आने देगा तो ये इंक्रीज़ कैसे होगा, तो इट विल बिकम इनफाइनाइट लूप, ठीक है। सपोज नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ इस कि यहाँ पे कंटिन्यू ना होता तो क्या होता, उस केस में बी के बाद वो डी भी डिस्प्ले कर देता, बी के बाद क्या डिस्प्ले करता, फिर ये वाला पार्ट ना होता, डी डिस्प्ले करता और x की वैल्यू क्या हो जाती 13 और कंट्रोल यहाँ आ जाता, ए डिस्प्ले करता, और अगर x की वैल्यू 13 है तो क्या होगा, ब्रेक मीन्स स्टॉप द लूप, कम आउट ऑफ इट, फिर कंट्रोल लूप ख़त्म हो जाती है और ये लूप से बाहर आ जाता। सो ब्रेक इज़ यूज टू कम आउट ऑफ द लूप एंड स्किप, कंटिन्यू विल स्किप रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इट। तो कंटिन्यू और ब्रेक के कम से कम एक एग्जाम्पल तुम्हारे MCQ में 100% आएंगे। सो तुम्हारी बुक के एंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको प्रैक्टिस करो, उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। नाउ आई थिंक दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। एक पास्ट स्टेटमेंट है, पास्ट स्टेटमेंट तुम्हें मैंने करा दी है, उसको भी रिवाइज करना। सो दिस फिनिशेज योर आइट्रेशन